بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ روز ایک ایسے موضوع پر گفتگو کی جو میری ذات سے وابستہ ہے اور میرے ذاتی دشمن ناصر عباس جعفری نے جو میری پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی ایک مذموم اور ناکام کوشش کی ہے، میں نے اس کو روکنے کے لیے تہذیب اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے اپنے حصے کا کام انجام دیا۔ لیکن میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں کہ منزل کی سمت جب بھی بڑھایا کوئی قدم، اپنے ہی دوست راہ میں دیوار بن گئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو میری ذات کے ساتھ الجھنا ہو، میری ذات سے کسی کا کوئی اختلاف ہو، یا میرے نظریات سے، میری سوچ کے زاویے سے کوئی شخص اختلاف رائے رکھنا چاہتا ہو، اس کو اسلام، معاشرہ اور معاشرتی رویے اس کو مکمل آزادی مہیا کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے اختلاف رکھنے کا، مجھ سے الجھنے کا، مجھ سے پنجہ آزما ہونے کا، اور حتیٰ کہ مجھ سے وہ رسا کشی کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ نسبی اعتبار سے دیگر اقوام اور مذاہب سے ممتاز مقام رکھنے کے دعوے دار ہیں، تو ہمیں اگر کسی پر الزام لگانا ہے تو اس کی بنیاد اور اس کا عنوان سچائی کو قرار دینا ہوگا۔ ہمیں اپنی ذات کو عنوان بنا کر جھوٹ پر مبنی بیانیے کے ساتھ یا جھوٹ پر مبنی مواد کا سہارا لے کر آپ کسی کو اگر ذہنی کرب اور اذیت میں مبتلا کریں گے تو پھر دین، اسلام، معاشرہ اور پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، اور یہاں پر جو مروجہ قوانین ہیں، اس کے جو ضابطے ہیں، اس کی عملداری میں وہ بندہ جو الزام لگانے والا ہے وہ اس کی زد میں آتا ہے۔ مجھ پر جو ناصر عباس جعفری صاحب نے از خود اسلام آباد میں I9 تھانے میں جو درخواست دی، اس کے مندرجات کو جب ملاحظہ میں نے کیا تو مجھے انتہائی تکلیف ہوئی۔ تکلیف کیوں ہوئی؟ کہ ناصر عباس جعفری صاحب نے پہلا لفظ یہ کہا کہ رضا عباس نقوی نے مجھے فون کال کی، جبکہ میرے پاس مذکورہ شخص کا نمبر ہی نہیں ہے، اور اس نے مجھے میرے نمبر پر خود سے اسلام آباد سے فون کال کی، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 6:19 اور 10 اگست 2025 کو جو مجھے فون کال آئی وہ میں وصول نہیں کر سکا۔ اس کے بعد وہی کال 6:30 پہ 10 اگست کی شام کو 2025 میں مجھے کال آتی ہے، اور میں جب وہ وصول کرتا ہوں تو اس کال کا دورانیہ 13:46 ہے۔ اس پر جو مجھ پر الزام لگائے گئے کہ 15 لاکھ روپے میں نے ان سے صدائے ابوذر لاہور پاکستان کے لیے ان سے چندہ مانگا ہے، بصورت دیگر ناصر عباس جعفری کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ جو
तसव्वुर में, वहम में भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। मैंने मुकाम इस्लामाबाद पुलिस अफसरान को इस कॉल की डिटेल निकलवाने की पेशकश की और उनसे मैंने दरख्वास्त की कि आप ऐसा करें कि इस ज़मन में आप इसकी कॉल डिटेल निकलवाएं, तफसीलात हासिल करें और ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। इसी तरह उन्होंने एबटाबाद में एक फर्जी मुद्दई खड़ा करके उन्होंने मुझे एबटाबाद से पुलिस के ज़रिए अगवा करवाया और वहाँ पर जो उन्होंने मुझसे सादा दस्तावेज़ात पर दस्तखत करवाए, निशान अंगूठा सख्त किया और एक मेरी तहरीर से, मेरे हाथ की तहरीर से एक नविश्ता जो है वो तहरीर करवाया, जिस पर मेरे दस्तखत और मेरे अंगूठे के जो निशान हैं वो सख्त है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जनाबे नासिर अब्बास जाफरी रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप बड़ी ताकतवर शख्सियत हैं, आप बड़ी माल और मता के हामिल हैं। मैं तो एक नहीफ, नातवान और कमज़ोर सा मोमिन मौलाई हूँ। मेरे पास दौलत के अलावा हर चीज़ है। मेरे अहबाब, मेरे असहाब, मेरे मुतल्लिकीन, मैं उनकी करम फरमाइयों पर नाज़ा हूँ। मैं गुरूर करता हूँ अपने असासों पे। मेरे मुतल्लिकीन, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब मेरा गरां कदर और बेशकीमत खजाना और असासा है। मैं उन पे नाज़ा हूँ। मेरा वो गुरूर है। मेरा सर फख्र से उठाकर चलने का सबब मेरे वो दोस्त जो हर मुश्किल घड़ी में मेरे बराबर खड़े हैं, मेरे हमरकाब हैं, मेरे गम गुसार हैं, मेरे गमखार हैं। मैं उन तमाम करम फरमाओं का दिल की अथाह गहराइयों से ममनून, मशकूर और शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दिया, मेरे हमनवा हुए। वो अपनी नमाज शब में अपनी दुआओं का सरनामा मुझे करार देते हैं। मेरे लिए वो दस्ते दुआ उठाते हैं और मेरा जैसा खुश नसीब कौन हो सकता है। नासिर अब्बास जाफरी साहब, आपके पास माल, मता, राह रस्म, मरासम और दुनियावी ताल्लुकात तो हो सकते हैं, लेकिन एक अंजमने गुलामाने हजरत अब्बास के ओहदेदार को, एक जिम्मेदार को झूठ बोलना और एक मौला अब्बास के गुलाम को अजियत देना, मैं ये समझता हूं, इस पर जरूर सोचिएगा। और एक बात याद रखिएगा, उनके यहां कौन मोतबर है और कौन गैर माकूल है। आले मोहम्मद की बारगाह में जब हम हाजिर होते हैं तो फिर उनका करम किस पे हो जाए। वो उनका करम है, वो उनकी मर्जी है और वो दिलों के भेद बहुत बेहतर जानते हैं। बेशक झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मुझसे उलझने के लिए, मुझसे पंजा आजमा होने के लिए अगर कोई शख्स सच्चाई और हकीकत को उन्वान बनाकर मेरे सामने आकर मुझे वार करेगा, मैं उसको बड़ी खंदा पेशानी से, बड़े खुजू खुशू से, बड़ी खुशदिली से, बड़े इन्हमाक के साथ मैं उसकी पेशकदमी उसकी तरफ करूंगा और मैं उससे उलझने की बजाय मैं उसको एहतराम के साथ। लेकिन एक बात याद रखिए, जो शख्स मेरी पीठ में छुरा घोंपेगा तो मैं आले मोहम्मद से तवस्सल करने वाला उनका वो मुजाहिद हूं कि इस 2.5 करोड़ की बस्ती में महकमा शुमारियात के मुताबिक शहर लाहौर की जो आबादी है वो 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के दरमियान तक है।
तो जिस शहर में 2.5 करोड़ इब्ने आदम आबाद हैं, इस शहर में मैं अपनी पूरी कामत के साथ, अपने पूरे वकार के साथ, अपने जाती तशख्खुस के साथ मैं जिंदगी कर रहा हूं। और मैं ये समझता हूं ये सब मोहम्मद और आले मोहम्मद के करम के बगैर मुमकिन नहीं। मुझे कमजोर जानने वाले ये जान लें, मैं अपने आप को नहीफ, नातवान, कमजोर, तन्हा, अकेला तस्वर करता हूं। लेकिन एक बात याद रखिए, आले मोहम्मद की करम फरमाइयां, उनकी अताएं और उनकी अताओं पर भरोसा जो है वो मेरे वकार की अलामत है, वो मेरी जिंदगी की जमानत है। और याद रखिए, मुझे कोई भी शख्स मुझसे उलझकर खुद सुकून में नहीं रह सकता। क्यों? कि मैं खुदाए हुसैन के रूबरू अपने आप को कभी जमीर फरोशों की सफ में नहीं खड़ा किया। मैं 3 वक्त के फाके के बाद भी इंतहाई इत्मीनान के साथ सांसें लेता हूं और मैं अल्लाह और आले मोहम्मद से तवस्सल करता हूं और उन्हीं से अपनी इज्जत और जिंदगी मांगता हूं। और उनके करम से मेरा भरम है। मैं अपने दुश्मनों को वाज़े अल्फाज में ये बता देना चाहता हूं कि पानियों पे ना दास्तान लिखो, पानियों का मिजाज बहना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।